Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Capricorn Ascendant and how the month of October 22 is going to pan out for the Capricorn Ascendant people. Let us first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Saturn is passing through the first house and it is in a retrograde motion till 22nd of October. After 22nd October, Saturn is going to turn straight, but even then, it will continue to pose a lot of challenges to the Capricorn ascendant people at both personal as well as professional levels. Saturn, by its nature, tests our limits by putting pressure on the natives. Whenever Saturn passes through the first house, it wants us to step up, work hard, and accept all our responsibilities rather than being lazy or running away from those responsibilities. This Saturn possesses the ability to make native a king or a beggar depending on how you respond to the challenges that this Saturn poses to you. Capricorn ascendant people, anyways, are very hardworking and they reach their goal in a slow and steady manner. Saturn will continue to aspect your third house of effort, seventh house of spouse, and 10th house of your action. And you have to put in tremendous amount of effort till January 23 to reap the benefits of hard work, as challenges will continue to arise in your workplace. After 15th of October, Sun is going to move into its debilitated sign in the 10th house where Ketu is already posited. And here Sun will be joined by Venus after 2 days. Sun is a staunch enemy of the ascendant Lord Saturn. So people should take all the tactical decisions at workplace prior to 15th of October. In the second half of the month, you should avoid taking any risk at the workplace. Deal only with people whom you have known for quite some time and should not try to switch your jobs in October. One of the remedies for this kind of alignment is to feed street dogs and especially the dogs that are black in color every day. This will help you to deal with this tricky kind of a transit at the workplace. Venus is the fifth house and the 10th house lord, and till 18th October it will pass through the ninth house. After that, it is going to move into its own sign in the 10th house. So, people who are engaged in speculation as well as education and all the artists, they will see a good time in the month of October. But this combination of Ketu along with Sun and Venus in the 10th house is definitely going to create some kind of a problems, and as a result all those people who want to take any kind of a risk at their workplace, they should do it before this moment. So prior to 15th of October, they can still take some risk at their workplace. But after Venus moves to its own sign in the 10th house, they should avoid getting into arguments with higher authorities at their workplace because this is going to backfire on them big time. Rahu is going to transition through the star of Venus in the month of October, and it will also come in direct opposition with Venus in the second half of October, along with Sun and Ketu. This Rahu is not going to let you have peace of mind, and the domestic environment is going to remain challenging. This placement of Rahu makes domestic environment very strange and weird, and person is never satisfied with the conditions that are existing in his or her home environment. People should also postpone their plans of buying any property till the time Rahu is transitioning through this house, which is till November 2023. Mars is transitioning through the fifth house till 15th of October. So this is going to give you a lot of aggression with your kids. So your kids will be filled with energy, but at the same time, you may also get into some kind of a conflict with your kids. All those people who are in the professions that are indicated by the fifth house, so people who are speculators or in education or who are in entertainment or artistic related fields, they will still have a decent time in the first 15 days of October. After 15th of October, Mars will move to the sixth house where it will be stationed in its enemy sign of Gemini. In the second half of October, 11th house Lord Mars is going to transition through the sixth house, which is going to provide you an opportunity to earn from your social network as well as bring a lot of energy in your job or line of service. So if you make some kind of an effort, you will still be able to overcome the hurdles that you will face in your jobs in the month of October. Jupiter is going to transition through the third house
and is going to reward unmarried people during this transit because it is going to aspect the seventh house through its fifth aspect. People who want to get married are going to have a good chance till April 23, and this Jupiter is permitting or creating that green flag in the ascendant for you to get married. Jupiter is also aspecting the ninth house of religion and higher learning, and this will continue to help people who are pursuing masters or doctoral degrees in the month of October. Now, there are also certain dates when people need to be very careful and watch out for. In the month of October, these dates are 2nd and 3rd of October, 15th, 16th, and 17th of October. You need to be very careful about your health during these 3 days, and 20th, 21st, and 22nd of October. So, in total, 8 days where you need to postpone any key decisions that you may have to take. Overall, the environment for Capricorn ascendant people is going to remain challenging in the month of October, and till the time Saturn is transitioning through the first house, they are going to face a lot of challenges in their personal and professional life. So that's the summary for the Capricorn ascendant people. If you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अक्टूबर 2022 का महीना मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश शनि प्रथम भाव से गुजर रहे हैं और यहाँ पर ये वक्री अवस्था में है। 22 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, लेकिन शनि चूंकि प्रथम भाव से गुजर रहे हैं तो ये व्यक्ति के लिए समस्याएं और चैलेंजेस लाते रहेंगे जब तक ये यहाँ बैठे हुए हैं, जनवरी 2023 तक। प्रोफेशनल लेवल पर भी, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि व्यक्ति के कर्म स्थान पे पड़ेगी, और पर्सनल जगहों पर तो शनि का प्रभाव रहेगा ही। शनि के साथ जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये है कि वो जिस भी भाव से गुजरता है वहाँ पे व्यक्ति के लिए चैलेंजेस लाता है, और उसकी वजह से व्यक्ति को देरी से ही सही लेकिन बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो जिनकी भी जन्म कुंडली में लग्न भाव में शनि होता है, उनकी जीवन में हर चीज बहुत धीमे होती है और बहुत देर से होती है, लेकिन वो धीरे धीरे बिल्ड करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, अपने विचारों को, जिसकी वजह से उनको लंबे समय में काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो यहाँ से शनि जनवरी 2023 तक मकर लग्न से गुजरेंगे, और यहाँ पे जैसा मैंने कहा लोगों के ऊपर काफी प्रेशर बनाएंगे यहाँ पर बैठ के सैटर्न। और उसका एक ही उपाय है कि व्यक्ति को जो भी चैलेंज आता है उसके सामने उसको एक्सेप्ट करके उसको ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे बैठा हुआ शनि व्यक्ति को या तो राजा बनाता है या रंक बनाता है। ये डिपेंड करता है कि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या उससे दूर भाग जाते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करके उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली वो चैलेंज को पार पाने के लिए नई नई स्किल सेट डेवलप करनी पड़ेंगी, और लंबे समय में आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है जब तक शनि यहाँ बैठा है। 15 अक्टूबर को सूर्य मूवमेंट करके अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे दशम भाव में। तो 15 अक्टूबर तक का समय में आपको अपने प्रोफेशनल एरिया पे जो भी ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो आपको ले लेने हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद सूर्य दशम भाव में चले जाएंगे। हालांकि 3 दिन बाद शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे और सूर्य का नीच भंग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि सूर्य और शनि बिल्कुल कट्टर दुश्मन है। तो जब दुश्मन आपके दशम भाव में आके बैठ गया है तो कार्यस्थल पे भले ही उसका नीच भंग हो जाए, लेकिन वो आपको समस्या लाए बिना छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि भी सूर्य पे पड़ेगी, तो भले ही सूर्य का नीच भंग हो रहा होगा शुक्र की वजह से, लेकिन यहाँ पर फिर भी कार्यस्थल पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी अक्टूबर के सेकेंड हाफ में। तो आपको अगर कोई भी निर्णय लेना है इम्पॉर्टेंट तो 15 अक्टूबर के पहले लीजिए। 15 अक्टूबर के बाद बिल्कुल चुपचाप बैठ के गर्दन झुका के काम कीजिए अपने काम कार्यस्थल पे। कोई किसी के साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरना है, आपको कहीं पे कोई पॉलिटिक्स के में ज्वाइन नहीं करना है, लोगों को जाके हायर अथॉरिटी में आपके बॉसेस जो बैठे हुए हैं उनके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। कुल मिला के कुछ भी रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है, तो अगर आपको नौकरी बदलने के भी मौके मिलते हैं तो प्लीज़ नौकरी मत बदलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत समस्या खड़ी करेगा। जहाँ पर हैं वहीं पे टिके रहिए। एटलीस्ट अक्टूबर के महीने में तो कोई अपॉर्चुनिटी लेनी है तो सेकंड हाफ में तो बिल्कुल मत लीजिए। इसका एक उपाय ये है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाइए, और अगर आप गरीबों को खाना देते रहते हैं डेली बेसिस पे तब तो और भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे शनि को प्रसन्न करने का
जो तरीका होता है वो है कि आप गरीबों को खाना खिलाइए, और केतु को बांध के रखने का उपाय होता है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाइए। तो कुल मिला के आप खाना खिलाना है, किसको खिलाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पंचमी शुक्र नवम भाव में नीच भंग अवस्था में बैठे रहेंगे 15 अक्टूबर तक। इसके बाद ये अपने स्थान में चले जाएंगे दशम भाव में, खुद की राशि में। यहाँ पे जितने भी लोग पंचम भाव से जुड़े हुए कार्यस्थल से एंगेज हैं, यानी आप एजुकेशन में हैं, आप सट्टेबाजी के व्यवसाय में हैं, या फिर आप किसी भी तरह के आर्टिस्टिक काम में हैं, तो उनको लोगों के लिए ये महीने का पहला हाफ बहुत अच्छा निकलेगा। और सेकेंड हाफ में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि कार्यस्थल पे जो पेक्यूलर टाइप का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, उसकी वजह से द्वितीय हाफ सारे लोगों का ऐसे ढीला ढाला ही निकलेगा। इसलिए रिस्क लेना इन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन पहले 15 दिन जिनकी खास करके शुक्र की महादशा चल रही है अभी, मकर लग्न वालों की, उनके लिए ये 15 दिन अच्छे निकलेंगे। राहु चतुर्थ भाव से भ्रमण करते रहेंगे। राहु अक्टूबर के महीने में शुक्र के नक्षत्र से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे ये प्रत्युति बनाएंगे 18 अक्टूबर के बाद शुक्र के साथ। तो यहाँ पे राहु जब भी चतुर्थ भाव में बैठा रहता है तो घर में बहुत अजीब सा माहौल क्रिएट करता है। जिनकी भी लग्न कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में होता है, उनके घर में हमेशा अशांति का माहौल होता है। अगर आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाते हैं जिसका कि चतुर्थ भाव में राहु है, तो आप भी उस अशांति को महसूस कर सकते हैं। कभी आप किसी के घर में जाएंगे तो एक बहुत अजीब सा माहौल होगा जिसको आप महसूस कर सकेंगे। इन लोगों सबके कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु होता है, और ये व्यक्ति को कभी भी मानसिक शांति नहीं लेने देता, क्योंकि चतुर्थ भाव मानसिक शांति को भी दिखाता है। इन लोगों के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में हमेशा खलल बना रहता है। तो यहाँ पे राहु जब तक बैठा हुआ है, यानी नवंबर 2023 तक, तो ये व्यक्ति के घर में अशांति का माहौल क्रिएट करेगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी इस समय में खरीदना चाहते हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए। इनफैक्ट व्हीकल्स में भी अगर व्यक्ति खरीदता है तो उसमें भी राहु कुछ ना कुछ हमेशा डिफेक्टिव चीजें लाने का प्रयत्न करता है। आप लोग देखते होंगे राहु के लग्न में जितने भी लोगों ने व्हीकल्स खरीदे रहते हैं, उन लोगों के व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन होते हैं कंपेयर टू बाकी लोगों के। तो ये राहु का आपका परिणाम रहेगा अक्टूबर के लिए। मंगल पंचम भाव से गुजरेंगे 15 अक्टूबर तक। तो ये पंचम भाव से जाता हुआ मंगल आपके बच्चों में बहुत एनर्जी भर के देगा। आप अगर कोई भी क्रिएटिव काम में हैं तो भी व्यक्ति का बड़े दिमाग चलेगा इस समय में। 15 अक्टूबर के बाद मंगल छठवें भाव में आ जाएगा आपके, जहाँ पे वो अपने शत्रु बुध की राशि में रहेगा। लेकिन यहाँ पे छठे भाव में आया हुआ मंगल आपको, अगर आप जॉब करते हैं या सर्विस में हैं या आप कोर्ट केस कचहरी यानी लॉ से भी जुड़े हुए हैं, तो भी ये मंगल आपके लिए फायदा करके देगा। यहाँ पर आपको आपके सोशल नेटवर्क जो है उससे फायदा होगा, और आपके बड़े भाई या बहनों से भी आपको इस समय में फायदा हो सकता है जब मंगल छठवें भाव से गुजरेगा तब। गुरु तृतीय भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तृतीय भाव से जाता हुआ गुरु अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो जितने भी लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ये गुरु अप्रैल 2023 तक गोचर में योग बनाता रहेगा। अब आपकी कुंडली में क्या महादशा अंतरदशा चल रही है उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। तो जब भी आप कभी किसी का भी रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि महादशा अंतरदशा उसको परमिट कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद गोचर में उसको परमिशन मिल रही है कि नहीं। और गोचर में भी अष्टक वर्ग के थ्रू आपको लास्ट में निकालना पड़ता है। जब चारों फैक्टर्स अलाइन हो जाते हैं तभी वो इवेंट होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि योग बन रहा है कि नहीं। लेकिन गोचर में तो आपको ये गुरु शादी करने के लिए हरी झंडी देते हुए दिखाई देते हैं अप्रैल 2023 तक। गुरु की सातवीं दृष्टि नवे भाव पर भी पड़ेगी। तो यहाँ पे जितने भी लोग धर्म से संबंधित व्यवसायों में हैं या धर्म से जुड़े हुए हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से वगैरह जुड़े हुए हैं, या आप खुद ही स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो इन सब के लिए गुरु अच्छा समय दिखा रहा है। क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ने की वजह से जितने भी लोग मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्रीज कर रहे हैं उनको भी इस समय में काफ़ी फायदा पहुंचेगा। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब व्यक्ति को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना पड़ता है। ये वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से गुजरता है। तो मकर लग्न वालों के लिए अक्टूबर में ये दिन है 2 और 3 अक्टूबर। 15, 16 और 17 अक्टूबर, इन 3 दिनों में अपनी सेहत का खास करके ध्यान रखिएगा। और 20, 21 और 22 अक्टूबर, इन 8 दिनों में आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कुल मिला के आप देखेंगे तो मकर लग्न वालों के लिए जब तक शनि प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो ये चुनौतियां लाता रहेगा और स्ट्रेस भी देता रहेगा। ये शनि का नेचर है। आपको
जैसे दबाव में डाल के कार्बन से हीरा बनता है, वही वाली स्थिति है कि शनि व्यक्ति को प्रेशर करता है जिससे कि उसके अंदर का जो डायमंड है वो निकल के आए। तो जितने भी लोग चैलेंजेस स्वीकार करेंगे वो इस समय में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अगर आप प्रेशर में आके दब गए तो फिर आपके लिए समय मुश्किल होता जाएगा। तो ये आपकी समरी है अक्टूबर महीने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।